Okay, this is the second video related to Christian Huygens wave theory. In this video, I will try to explain the concept of reflection on the basis of Christian Huygens wave theory, which I discussed with you in the last video that is uploaded on the YouTube channel. Okay, so this is the weightage of 3 marks in your exams, this theory. What is reflection? You know very well. The bouncing back of the light into the same medium after striking through a surface is known as reflection. Okay, now this phenomena I am going to explain with the help of Christian Huygens wave theory, right? So, explanation of reflection. This is the heading: explanation of refraction. Explanation of refraction on the basis of Huygens theory or wave theory. Basis of wave theory. Procedure is quite simple. You have to follow a step-by-step procedure for the explanation and for the better understanding of the concept. Consider a reflecting surface S dash. The first step. Consider a reflecting surface S dash. The first step. Now here is your surface. This is a surface which is reflecting in nature. I mean to say that majority of the incident light will be reflected back into the same medium according to the nature of the surface. Okay, so let us consider the 3 parallel rays coming to this surface. These are the 3 parallel rays which are coming to the surface. Okay. In the last video, I discussed that key wavefront is the envelope of the wave. So, for the parallel waves, the envelope, that is wavefront, is plane wavefront, which is perpendicular to the wave. That's why I am going to draw a wavefront like this. Okay, this is point A and this is point B and this is wavefront. So these are the incident ray. It means this is the incident wavefront. Now look carefully at the figure. A striked and B have to strike. Okay, so suppose T is the time in which B strike A dash with velocity V, then BA dash is equal to VD. Equation number 1. Okay. If SS dash is not present there, then what about the point A? Point A will be proceed parallel to BA dash and let in time t A supposed to reach at D. In the absence of SS dash, A would advance to D with velocity V. So AD is also equal to VT. So from equation number 1 and 2, what we observe that BA dash is equal to 80. BA dash is equal to 80. BA dash is equal to 80 from equation 1 and 2. From equation 1 and 2. BA dash is equal to AD is equal to VD. Suppose this is equation number 3. Now, but
This is not going to happen actually in the case of reflection. Why? Because this is the reflecting surface. S dash is the reflecting surface. So no wave allowed to cross this border. Okay. All the wave should reflect in this direction like that. Here it is go. The first wave. There is the second wave and that is the third wave. These are the three reflected waves. Okay. So in the presence of SS dash, all the particles lying on the wavefront AB will act as a source of secondary wavelets. In the presence of SS dash, all the particles lying on the surface, on the wavefront AB acts like source of secondary wavelet, successively struck by the surface S dash between A and A dash. अब थोड़ा हिंदी में बात करते हैं. हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर है. अब एंगल आई कहाँ है? एंगल आई यहाँ है और एंगल आर कहाँ है? यहाँ है. लेकिन चूंकि हम वेव थ्योरी यूज कर रहे हैं, तो वेव थ्योरी जब हम यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले ये दिखाना होगा कि एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है और एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. ये सारा रायता इसीलिए फैलाया जा रहा है. हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि हमारे पास एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, वैसे ही हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होनी चाहिए और वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए. ये नटशेल में. उसके बाद हम लॉ को डिड्यूस करेंगे. तो इसके लिए मैंने माना कि हमारे पास एक सरफेस है एस एस डैश, जिस पर तीन पैरेलल वेव जो रेड कलर में दिखाई दे रही है वो इंसिडेंट करती है. ए पहले स्ट्राइक करती है और बी सबसे बाद में वो पॉइंट है स्ट्राइक करने वाला वेव फ्रंट का. तो हाइगेंस चीचा ये कहते हैं कि अगर ये जो वेव फ्रंट है इस पे जितने भी पार्टिकल लाई करेंगे वो सारे पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह होंगे. और पिछली वीडियो अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेवलेट जनरेट होती है. ये आपको याद रहना चाहिए. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एस एस डैश, ऑल द पार्टिकल्स लाइंग ऑन द वेव फ्रंट ए बी एक्ट लाइक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स and they are successively struck by the surface S dash between A and A dash, and they successively struck by surface S dash between A and A dash. अब A dash के बीच में ये पहले A गिरेगा, फिर उसके बाद वाला पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट, उसके बाद वाला पॉइंट, फिर ये P पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट है, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट, सबसे लास्ट में जाके B A dash को स्ट्राइक करेगा. ठीक है. सक्सेसिवली स्ट्रक बाय द सरफेस S dash between A and A dash, राइट. तो अब हमें ये दिखाना है कि लेट इन टाइम t A reaches to B dash. मान लो यहां पहुंच जाता है. पेन अलग कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए. ये B डैश पॉइंट है बेटा. B हम यहां से हटाकर यहां बना रहे हैं. B डैश, सॉरी, ये आपका B डैश पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है. अलग अलग रखिए थोड़ा सा ताकि ये आपका B है और ये B डैश है. अब टेकिंग ए बी डैश एज रेडियस एंड ड्रॉ स्फेरिकल वेवलेट. टेकिंग ए बी डैश एज रेडियस, ड्रॉ a spherical wavelet. क्योंकि बेटा A पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जनरेट होने वाली वेवलेट पहले छोटी रेडियस, फिर बड़ी रेडियस, फिर बड़ी रेडियस, फिर बड़ी रेडियस, फिर बड़ी रेडियस. तो हमने ए बी डैश को रेडियस बनाकर एक स्फेरिकल वेवलेट का एक पोर्शन दिखाया. अब
आपको पता है कि स्फेरिकल वेवलेट पर खींचा गया टेंजेंट न्यू वेवफ्रंट की पोजीशन देता है, ये पता है, लेकिन अभी हम ये साबित करेंगे। कैसे? देखो, हमने इस लाइन को मिला दिया, ये टेंजेंट है बेटा, ये टेंजेंट ऑन दिस स्फेरिकल वेवलेट है। सिमिलरली ऐसे ही एक पॉइंट ये भी माना जाएगा एम डैश, और ये एम माना जाएगा। अब हम ये दिखाएंगे कि जैसे बी ए डैश की वैल्यू ए बी डैश के बराबर है, वैसे ही पी एम की वैल्यू पी एम डैश के बराबर है। अगर हम ये दिखाने में कामयाब हो गए, जैसे कि हमने दिखा रखा है लेट इन टाइम टी ए रीचेस टू बी डैश, तो बी ए डैश की भी वैल्यू जो है वो ए बी डैश की भी वैल्यू वी टी है। तो जैसे बी ए डैश की वैल्यू ए बी डैश के बराबर है, वैसे ही हम दिखाएंगे पी एम की वैल्यू पी एम डैश के बराबर है। तब तो हम ये साबित कर पाएंगे कि ए बी डैश इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्योंकि नई वेव फ्रंट तभी मानी जाएगी जब पुरानी सारी वेवलेट से खींचा गया एक ही कॉमन टेंजेंट उन सारी नई वेवलेट्स पर हो जाए, जैसा कि क्रिश्चियन हाइजेंस की थर्ड पोस्टुलेट कहती है। एक बार फिर से समझ लो, ए और ए डैश के बीच में निकलने वाली जितनी भी स्फेरिकल वेवलेट्स हैं, सब पर अगर आप एक कॉमन टेंजेंट खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो आपकी वेव फ्रंट बनाएगी। क्योंकि ये मामला आफ्टर द रिफ्लेक्शन है, इसलिए ए डैश बी डैश को हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का नाम देंगे। लेकिन अभी हमें ये साबित करना है कि ए डैश बी डैश इन सारी वेवलेट्स पर कॉमन टेंजेंट हैं। ध्यान रखिएगा, टेकिंग ए बी डैश एज रेडियस ड्रॉ a spherical wavelet। अब if a dash b dash is a common, if a dash b dash is a reflected wave front, then it should be common tangent to all secondary wavelets originated from A to between A and A dash, originated by the points between A and A dash, इन दोनों पॉइंट्स के बीच से ओरिजिनेट होने वाली सारी वेवलेट्स पर अगर ए डैश बी डैश एक कॉमन टेंजेंट हो पाया तो हम ये कहेंगे कि ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 बराबर है ना। तो हमने क्या दिखाया, बी ए डैश की वैल्यू ए बी डैश के बराबर है। अब उसी तरीके से हम दिखाएंगे पी एम डैश की वैल्यू पी एम के बराबर है। बच्चों, इसे वीडियो को पॉज कर इतना यहीं तक नोट कर लो, आई कैन नॉट इरेज द फिगर, मैं उस फिगर को इरेज नहीं कर सकता, तो इसे आप यहीं पर नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम तुम्ही से पूछ के करेंगे, अब हम खुद नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर मैं आपको लाइव पढ़ा रहा होता तो मैं आप ही से पूछता। चलिए एक छोटी सी कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे। देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ए बी डैश ए डैश, और ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए डी और ए डैश का, ये हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब इन दो ट्रायंगल में हैं, इन ट्रायंगल ए डी ए डैश और ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ये दो ट्रायंगल ए डी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, इसमें आप देखिए क्या ए डैश कॉमन है? का ये बिल्कुल कॉमन है, ए डैश इज कॉमन, ए डैश कॉमन है। उसके बाद बेटा जे एंगल 90 है, डेफिनेटली 90 है, और ये टेंजेंट खींचा गया तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब एंगल ए डी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश, ये क्या है? 90 डिग्री ईच। उसके बाद देखिए, अभी आपने साबित किया है कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, पक्की बात। ये बी टी लो भैया,
इसका मतलब ट्राइंगल एडी ए डैश और ए बी डैश ये क्या है बेटा, कॉन्ग्यूरेंट है ना। हेंस ट्राइंगल ए डी ए डैश कॉन्ग्यूरेंट टू ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। अब इसका नतीजा क्या हुआ, देखो ये एंगल साइड सिमिलरिटी प्रूव्ड है। अब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी अगर प्रूव्ड है तो बी ए डैश की वैल्यू सॉरी एडी की वैल्यू ए बी डैश के बराबर है, ये अपोजिट एंगल बराबर है, ये कॉमन साइड है, तो अल्टीमेटली ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। सो एंगल बी डैश ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश डी। वाह, क्यों प्रूफ किया मैंने, देखिए मैंने दिखाया कि ए बी डैश की वैल्यू ए डी के बराबर है, तो फिर ये एंगल इसके बराबर है। अब दो और ट्राइंगल देखो हैं, अगेन इन ट्राइंगल पी एम ए डैश और पी एम डैश ए डैश को देखो, अगेन इन ट्राइंगल पी एम ए डैश एंड ट्राइंगल पी एम डैश ए डैश। जब आप इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो अब आप देखिए जैसे ए डैश कॉमन था उन दोनों में, वैसे पी ए डैश कॉमन है इन दोनों में। वाह भाई, पी ए डैश इज कॉमन। अच्छा, एंगल पी एम ए डैश, एंगल पी एम ए डैश इज इक्वल टू एंगल पी ए डैश एम डैश। जस्ट प्रूफ सॉरी एक मिनट पी एम डैश ए डैश हमारा 90 डिग्री ईच है ना। और अभी हमने ताजा प्रूफ किया है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बेटा ए की जगह पी कर दो और बी डैश की जगह एम डैश और डी की जगह पर एम करके वही एंगल फिर से लिख दो, है ना। ठीक है, नए रैपर में पुरानी कहानी हो गई। क्या हो गई, एंगल पी ए डैश एम डैश इज इक्वल टू एंगल पी ए डैश एम। जस्ट प्रूव अबाउट ये वाला एंगल जो प्रूफ किया था, अब ये जस्ट प्रूव लो भाई, अब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया या सिमिलर, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज हो। ठीक, हेंस ट्राइंगल पी ए डैश एम डैश पी एम ए डैश सॉरी पी एम डैश ए डैश इज इक्वल टू ट्राइंगल पी एम ए डैश। बेटा ये बराबर हो गए, लो भैया ये बराबर हो गए। अब देखो टेक्निक ये कहती है कि जब ये साइड इसके बराबर थी तो ये एंगल इसके बराबर हुआ। अब जब ये एंगल इसके बराबर है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पी एम डैश की वैल्यू पी एम के बराबर है। तो पी एम डैश की वैल्यू पी एम के बराबर है। क्या प्रूफ किया बच्चों, जिस तरीके से बी ए डैश की वैल्यू ए बी डैश के बराबर थी वैसे ही पी एम डैश की वैल्यू पी एम के बराबर है। इसका मतलब एट द सेम टाइम, अगर टाइम नाम के फैक्टर को आप कंसीडरेशन में ले लेंगे तो जब आप टेंजेंट खींचने चलेंगे तो नो डाउट ये दूरी और ये दूरी अलग अलग हैं, लेकिन हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की सहायता से ये दिखा दिया कि आप एक ही टेंजेंट इन तीनों पॉइंट्स पर खींच सकते हो, चाहे वो बी डैश का पॉइंट हो, चाहे इन डैश का हो, चाहे ए डैश का हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बिकॉज it is common to all secondary wavelets। ये देखिए, आप कोई भी किताब खोल के देख लीजिए, इतना एक्सप्लेनेटरी मोड आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो क्रिश्चियन हाइगेंस की वेव थ्योरी में हमें पहला काम यही करना होता है कि हमें ये दिखाना होता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक दूसरे के बराबर हैं। जब हम ये दिखा ले जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक दूसरे के बराबर हैं। अब बेटा हम लॉ को डिड्यूस करेंगे, और लॉ को डिड्यूस करना लिटरली बोलता हूँ बहुत आसान है।
आपने 9th 8th या 10th में एक थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अब बेटा देखो, इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल ये आई है, तो इस स्ट्रेट लाइन का ये ब्लू लाइन जो है परपेंडिकुलर है, और इस डॉटेड रेड लाइन का ये थिक रेड लाइन परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लू लाइन से रेड लाइन को मिलाने वाला एंगल आई होगा, और ये तो आपने आर लिखा ही हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, पी को यहां से अब हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। है, अब बेटा दो ट्राइंगल फिर देखो, लॉ का डिडक्शन आ गया, डिडक्शन ऑफ लॉ। तो लॉ का डिडक्शन करने के लिए फिर हम एक सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, डिडक्शन ऑफ लॉ, और आप देखिए कितनी आसानी से प्रूव होता है डिडक्शन ऑफ लॉ। देखिए ट्राइंगल ए बी ए डैश और ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश में, इन ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी ए डैश, इन दोनों ट्राइंगल में आप एक चीज कॉमन पाते हैं, क्या, ए डैश इज कॉमन। ए डैश क्या है बेटा, कॉमन है, ए डैश तो कॉमन हो गई। अच्छा, कुछ देर पहले हमने प्रूफ किया था बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ये भी प्रूव्ड है। और तीसरी बात, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश 90 डिग्री है, यानी ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी ए डैश, ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, सिमिलर है, सॉरी या कॉन्ग्रुएंट, जो भी आप कहना चाहें। तो बच्चों देखो, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये है कॉमन साइड, तो अल्टीमेटली जो अपोजिट एंगल होंगे, यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। हेंस ले हो गया प्रूव, हेंस एंगल बी ए डैश, एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए, एंगल बी डैश ए। इसका मतलब ये है एंगल आई, ये है एंगल आर। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज वेरीफाइड बाय द क्रिश्चियन हाइगेंस वेव थ्योरी। हमने वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया। इसे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, नोट करते चलिएगा, और एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब एक और डेरिवेशन जो मैं कराऊंगा उसमें से 110% आपको एक डेरिवेशन बोर्ड में मिल जाएगा, मुझसे मत कहिएगा, मेरा काम था बताना। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी ये क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है। चलो अच्छा है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, दूसरा टॉपिक। इसी में दूसरा टॉपिक देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। प्यारे बच्चों इसे नोट करो। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, पूरा व्यू आ रहा होगा आपको, बेहतरीन व्यू आ रहा है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आइए, तो साहब अब हमको एक्सप्लेनेशन देना है किसका, रिफ्रैक्शन का। तो जब हम एक्सप्लेनेशन देंगे रिफ्रैक्शन का, तो ये कंपैरेटिवली समझने में रिफ्लेक्शन से ज्यादा आसान है। देखो कैसे, अब हम हेडिंग डालते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन on the basis of wave theory, on the basis of wave theory, explanation of refraction on the basis of wave theory, consider a refracting surface SS dash, ये आपका पहला स्टेप है, consider a refracting surface, consider a refracting surface SS dash। मान लीजिए आपके पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एस एस डैश, तो कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस एस डैश। अब ये आपने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाया, सॉरी मेरे मुंह से रिफ्रैक्टिंग निकल आया, रिफ्लेक्टिंग निकल आया बच्चों। ये आपका एक सरफेस है एस एस डैश, ठीक है। इस पर आप 3 पैरेलल वेव्स इंसिडेंट कराइए, जैसे आपने पहले कराई थी।
ये 3 वेव्स हमने इंसिडेंट करा दी, राइट। अच्छा, ये उससे कंपैरिजन में आसान है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साहब, ये इसकी वेव फ्रंट है। अच्छा, अभी सब चीज़ें लिखूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए और बी, ये इसकी वेव फ्रंट है। लेट बी स्ट्राइक ए डैश, लेट बी स्ट्राइक ए डैश with velocity v1 in time t, then ba dash is equal to v1t, equation number 1, ठीक। in the absence of ss dash, in the absence of ss dash, a would advance to d with velocity v1 in time t, then अब देखो बेटा, जितनी ये पैरेलल आ रही ना, तो हम इसके एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचेंगे, क्योंकि कि ना होता ये सरफेस तब ये काम होता, लेकिन चूंकि ये सरफेस है तो ये देखिए, ये अब ये डी हो गया, तो AD की भी वैल्यू क्या हो गई, v1t, इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रेस को ऐसे जाने नहीं देगा। आइए पहले कुछ और नामकरण संस्कार कर लेते हैं, एक P लिख लेते हैं और एक M लिख लेते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इन द प्रेजेंस ऑफ SS डैश, लेट A would all the particles, अब ये मान मनोबल यहां से शुरू की जाए, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, all the particles lying on the surface, lying on the wave front AB, AB dash नहीं बेटा, AB wave front AB successively struck by the surface SS dash between points A and A dash, act as a source of secondary wavelet, acts as a source of secondary wavelets। तो वेव थ्योरी क्या कहती है कि ए और बी पे लाई करने वाले सारे पार्टिकल्स सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह काम करेंगे। जब ए बी टकराना शुरू करेगा तो पहले ए, फिर उसके बाद का पार्टिकल, फिर पी पार्टिकल, फिर लास्ट में बी ए डैश पर आकर मिल जाएगा। तो क्या जब ये टकराएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे मीडियम में जाएंगे, तो अब ये सारे पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह बनेंगे। तो जब सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह बनेंगे तो लिखो, लेट इन टाइम टी ए एडवांस टू बी डैश विद वेलोसिटी v2, लेट इन टाइम t a advance to b dash with velocity v2, hence ab dash is equal to v2t, taking ab dash as radius, draw a spherical वेवलेट। ये चचा हाइगेंस कह गए। अब मान लो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद वेव का पाथ ये हो जाता है, ये थोड़ा फिगर में अगर कुछ गड़बड़ी, बेटा ये तीनों पैरेलल रखनी है, तीनों रेस पैरेलल, अगर नहीं दिख रही है तो बना लेना, ठीक है। अब यहां पहुंचा मान लीजिए, ये पॉइंट है बी डैश, इसको हमने
इस रेडियस लिया और एक स्फेरिकल वेवलेट खींच दी। अच्छा, अब ज्वाइन ए डैश बी डैश। नाउ ज्वाइन ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन करो। दूसरी पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको चित्र समझ में आए, है ना। ये देखिए, ये ज्वाइन कर दिया। अब अगर ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो ये सारे स्फेरिकल वेवलेट पर कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। अब यही हम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? इसे माना तुमने 1, इसे माना 2, इसे मान लो 3। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, बेटा बी ए डैश और ए डी एक दूसरे के बराबर हैं तो इक्वल टू करके लिखे जा सकते हैं। बी ए डैश इज इक्वल टू ए डी अपॉन, ये क्या लिखोगे, ए बी डैश। ए बी डैश ये क्या है बेटा, रेडियस इन मीडियम 1 अपॉन रेडियस इन मीडियम 2, V1t अपॉन V2t। अब सुनो, जैसे बी ए डैश ए बी डैश के बराबर है, अब हमें दिखाना होगा कि पीएम डैश के पीएम और पीएम डैश का रेशियो जो है वो V1t और V2t के बराबर है। आइए दिखाते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कर इसे नोट कीजिए। इसका थीम आप समझ लीजिए कि जितने टाइम में बी ए डैश तक पहुंचा है V1 वेलोसिटी से, उतने ही टाइम में ए बी डैश तक पहुंचा है V2 वेलोसिटी से। तो जैसे ए बी वेव फ्रंट है, वैसे हमें ए डैश बी डैश को भी वेव फ्रंट साबित करना है। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें क्रिश्चियन हाइगेंस की पोस्टुलेट नंबर 3 को प्रूव करना होगा, यानी सारी सेकेंडरी वेवलेट पर एक ही टेंजेंट खींचा जाना चाहिए और वो कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। तो हमने ए बी डैश पर तो टेंजेंट खींच दिया। अब हमें ये देखना है कि पी से ओरिजिनेट होने वाली ये जो बीच की वेवलेट है, क्या इस पर खींचा, क्या ये टेंजेंट इस पर भी है? अगर है तो फिर जिस तरीके से बी ए डैश अपॉन ए बी डैश की वैल्यू V1t अपॉन V2t के बराबर है, उसी तरीके से पीएम अपॉन पीएम डैश की भी वैल्यू V1t अपॉन V2t के बराबर होनी चाहिए। तब तो ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देवियों और सज्जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले इसे नोट कर डालो, क्योंकि अब हम इसे इरेज करेंगे और इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, देखिए, इसको नोट कर डालिएगा और नोट करके आगे बढ़िएगा। तो जब हम इसे प्रूफ करने चाहेंगे तो अब हमें दिखाना है कि जिस तरीके से बी ए डैश अपॉन ए बी डैश की वैल्यू V1t अपॉन V2t के बराबर है, ठीक उसी तरीके से पीएम अपॉन पीएम डैश की भी वैल्यू V1t अपॉन V2t के बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों, ये नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, आपको करना तैयारी है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। हमारा काम आपको बता देना है, पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब मैं फिर वही टेक्निक अपनाऊंगा। देखिए, आप एक ट्राइंगल ए डी ए डैश और ट्राइंगल पी एम ए डैश, बेटा इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन है, ये और ये एंगल जाहिर सी बात है बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो नाउ इन सिमिलर triangles AD A dash and PM A dash, बेटा ट्राइंगल की सिमिलरिटी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज को इक्वल करती है। अगर हम AD को लेते हैं तो AD के करस्पॉन्डिंग PM है, और अगर हम AA डैश को लेते हैं तो इससे करस्पॉन्डिंग PA डैश है। तो इसे हम लिख सकते हैं AD अपॉन AA डैश, AD अपॉन AA डैश। ऐसे ही लिख सकते हैं PM अपॉन PA डैश, PM अपॉन PA डैश। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी तीन तो यही मान लिया था ना, ये चौथा इक्वेशन था, इसे 5 मानो, 5 नंबर आ गया। ओके, अगेन अब आप दो ट्राइंगल सिमिलर और देखिए। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन है और ये एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों रेज भी पैरेलल ही होंगी।
ठीक है, एक ही जैसे रिफ्रैक्ट होंगी ये तीनों रेज, तो ये तीनों पैरेलल होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश और ट्राइंगल पी एम डैश ए डैश भी सिमिलर हैं। अगेन इन सिमिलर डेल्टास, अगेन इन सिमिलर डेल्टास पी एम डैश ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, इन दोनों ट्राइंगल में आप ए बी डैश अपॉन ए डैश करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी एम डैश अपॉन पी ए डैश, पी एम डैश अपॉन पी ए डैश, राइट। एक काम करो बच्चों, इसको इक्वेशन 5 ना मानकर एक काम करो, इसे ऐसे लिख दो, इसे लिख दो ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए डैश अपॉन पी ए डैश, इसे माने इक्वेशन नंबर 5। और इसमें भी एक काम करो, ए बी डैश अपॉन पी एम डैश इज इक्वल टू ए डैश अपॉन पी ए डैश, इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लो। अब 5 और 6 में अगर आप लोग आफ्टर करते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वेशन की बराबर। देखिए ए डैश अपन पी ए डैश यहाँ भी है, ए डैश अपन पी ए डैश वहां भी है, तो हम लिख सकते हैं हेंस, अरे हेंस काहे करें, सीधे इक्वेट ना करें, इक्वेटिंग 5 and 6, ठीक। जब हम 5 और 6 को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलता है एडी अपॉन पी एम, एडी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए बी डैश अपॉन पी एम डैश, एडी अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एम डैश। भैया एडी अपॉन ए बी डैश क्या था, V1T अपॉन V2T, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी एम अपॉन पी एम डैश इज इक्वल टू V1T अपॉन V2T, यानी रेडियस इन मीडियम 1 अपॉन रेडियस इन मीडियम 2, रेडियस किसकी, स्फेरिकल वेवलेट की। अब उस स्फेरिकल वेवलेट पर खींचा टैंजेंट, वो आया कॉमन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस A dash B dash is a reflected wave front, hence A dash B dash is a refracted wave front, ये refracted wave front है, नोट कर डालिए इसको। अब ये हमने साबित कर दिया कि ये refracted wave front है। अब हमें ये दिखाना है कि स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर डालिए। जब आप इसे नोट करेंगे, नोट कर डालिए इसको, वीडियो को यहीं रोकिए और नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब लॉ का डिडक्शन, अच्छा अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए और तुम्हें याद ना आ रहा हो तो अल्लाह के वास्ते इस फिगर को याद रखिए, और आगे जो मैं 2 स्टेप करने जा रहा हूं उसे भी आप लिख देंगे तो एग्जामिनर तरस खा के 2.5 नंबर दे ही देगा। अगर आप ये नहीं भी दिखाते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का रेशियो सेम है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बस वही काम फिर से करना है, ये एंगल आपको आई, और चूंकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, ठीक है। तो अब ट्राइंगल देखिए, 2 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, डिडक्शन ऑफ लॉ, लॉ का डिडक्शन है ये, डिडक्शन ऑफ लॉ में देखिए इन ट्राइंगल ए बी ए डैश। अब अगर इसमें हम साइन आई डिफाइन करें तो साइन आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, ये बी ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए डैश होगा। एंड इन ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, अब इसमें देखो साइन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए बी डैश अपॉन ए डैश, डिवाइड कर दो।
तो डिवाइडिंग above two equation we get above two equations we get sin I upon sin R, BA dash upon AA dash, AB dash upon AA dash काट डालो, BA dash upon AB dash। इसकी वैल्यू क्या साबित किए हो? V1t upon V2t, V1t upon V2t। चूंकि मैं तुम लोगों को पहले ही रे ऑप्टिक्स पढ़ा चुका हूं, तो तुम्हें मालूम है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही तो इसमें लॉ है, खत्म। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम, अ कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ, खत्म, प्रूव्ड हो गया। लीजिएगा, तो दोनों इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिए। अगली वीडियो में थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, अगला चैप्टर।